Good morning, everyone. Today we will discuss maintenance of wives, children, and parents. So, this chapter was meant by keeping this view in mind that the person who are not capable or who are unable to maintain himself, like wives, parents, children, they, you know, don't get confused or what we can say, um, destitute or deserted. They don't feel out of the society. So that is the reason this is a social legislation, we can say. So this is a social legislation in a liberal sense. So this this chapter has been added by the lawmakers after giving many thoughts to the conditions of the people who have been deserted by their families, and who have been what you can say, were forced to live a life of a in a petty condition. So this chapter contains sections from 125 to 128 CRPC, and this is chapter 9. Basically, uh, this chapter provides for a speedy, effective, and inexpensive remedy against persons who neglect or refuse to maintain their dependent wives, children, and parents. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति who are able to maintain their wives, children, and parents, and intentionally if they are not doing it, they are not maintaining them. So these are the sections which will provide them a remedy. These provisions are a measure for social justice, as I just told you, social justice, and fall within the constitutional sweep of Article 15, subclause 3, reinforced by Article 39. ये किसने कहा था? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. किस केस में? रमेश चंद्र कौशल वर्सेस वीना कौशल, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1807. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेक्शंस हैं, ये सोशल लेजिस्लेशन है और ये गारंटी करते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 39 एंड 15 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है, उनकी गारंटी है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये जो लेजिस्लेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. These provisions are applicable to persons belonging to all religion. अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं कि अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ जाए कि क्या सिर्फ ये एक पर्टिकुलर सेक्ट या एक पर्टिकुलर रिलीजन पे अप्लाई करेगा, तो नहीं. दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू persons belonging to all religion and have no relationship with the personal law of the parties. ये डिस्कस किया था नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर के केस में. नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर के केस में कोर्ट ने ये बोला था, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट 446. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं. ठीक है, ये जो सेक्शंस हैं इनका रिलीजन और पर्सनल लॉ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो मैरिज की वैलिडिटी है, कि मैरिज लीगल है, इलीगल है या वॉइड है, तो इसकी जो वैलिडिटी आप चेक करेंगे, वो वैलिडिटी आप पर्सनल लॉ से ही चेक करेंगे. ठीक है, तो जब आप वैलिडिटी ऑफ मैरिज की बात करते हैं तो आप पर्सनल लॉ को व्यू में कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा. ठीक है, हम आते हैं. इफ अ पर्सन हैज ऑलरेडी obtained a maintenance order under his or her personal law, the magistrate, while fixing the amount of maintenance, may take that into consideration while fixing the quantum of maintenance under the code. So irrespective of whether you have taken if there is a provision in a personal law regarding maintenance, and the person who has already obtained a decree from from for the maintenance under that personal law, that person can also go to the court under 125. But one important thing is, court should consider uh, the amount of maintenance that person is receiving under personal law while deciding the amount of maintenance under 125 CRPC. ठीक है, अब 125 कन्फर करता है एक स्टैट्यूटरी राइट एंड इज देयरफॉर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल लॉ. अभी मैंने आपको बताया था
Thus, a Shia wife under a muta marriage would be entitled to maintenance under section 125. क्योंकि आपने मुस्लिम लॉ पढ़ा है अगर, तो आपको पता है कि जो शिया मुता मैरिज मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज जो होती है, उसमें जो वाइफ होती है उसको अंडर पर्सनल लॉ मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है, बट दैट लेडी कैन ऑल्सो अप्रोच टू कोर्ट अंडर सेक्शन 125 CRPC. अब देखते हैं 125 सेक्शन 1 की बात करते हैं. कौन कौन से वो लोग हैं जो कि एंटाइटल्ड हैं मेंटेनेंस के लिए. सबसे पहले तो आता है वाइफ. और वाइफ में भी वेदर आपकी वाइफ मेजर है या माइनर है, दोनों ही केस में शी इज एंटाइटल्ड. हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस. ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन कहता है, एक्सप्लेनेशन बी ऑफ 125 सब क्लॉज 1 वाइफ को डिफाइन करता है कि क्या कौन होगी वाइफ. तो वाइफ सो एज टू इंक्लूड एज डिवोर्स्ड वाइफ. वो डिवोर्स वाइफ जिसने शादी नहीं की हो, जिसने रीमैरिज नहीं किया हो. ठीक है, वो डिवोर्स वाइफ. अंडर द ओल्ड कोड अ डिवोर्स वाइफ वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. तो ये तो एकदम ही इनजस्टिस हो गया कि भाई मेंटेनेंस तो तभी हम लेंगे ना अगर हमने डिवोर्स, किसी के हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया, तो वो पर्सन जा करके क्लेम करेगा कोर्ट में कि भाई एप्लीकेशन डालेगा दैट आई एम नॉट एबल टू मेंटेन माई सेल्फ, आई नीड मेंटेनेंस. तो अभी कोर्ट कह देगा आप तो डिवोर्स वाइफ हो तो आपको कैसे, क्योंकि इट वाज अ इनजस्टिस, दैट्स व्हाई इट हैज बीन रेक्टिफाइड. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका कि वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड और obtained divorce from her husband. ठीक है, ये है वाइफ की डेफिनेशन. सो अ वुमन who has been divorced on account of a decree passed under the Hindu Marriage Act continues to enjoy status of a wife. कब तक के लिए? For a limited purpose of maintenance. तो एक डिवोर्स वाइफ भी मेंटेनेंस जब तक उसको नहीं मिलता है तब तक वो वाइफ का स्टेटस मेंटेन करेगी. देयरफॉर wife against whom decree for divorce has been passed on account of her deserting her husband, ठीक है, कैन क्लेम मेंटेनेंस अलाउंस अंडर 125. पहले आप इसका केस लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या. रोहतास सिंह वर्सेस श्रीमती रमेंद्री. रोहतास सिंह वर्सेस श्रीमती रमेंद्री, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट 952. इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी वाइफ के ने डिवोर्स की डिक्री उसको मिली है किस ग्राउंड पे. एक ग्राउंड होता है आपका 13(1) में जिसे कहते हैं डिजर्शन. 13(1)B जिसे कहते हैं डिजर्शन. डिजर्शन मतलब अगर कोई वाइफ या कोई हस्बैंड एक दूसरे से 2 इयर्स तक कंटिन्यूअसली अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहते और एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तो इसे कोर्ट कंसीडर करती है डिजर्शन, कि मीन्स आपने खुद अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे को छोड़ दिया है. अगर इस ग्राउंड पे भी वाइफ को डिवोर्स की डिग्री मिलती है तब भी वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप बात कर सेकेंड वाइफ जो होती है, आपके सवाल आ रहा होगा क्या सेकेंड वाइफ भी एंटाइटल्ड है. नो, सेकेंड वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस. द लीगैलिटी ऑफ मैरिज वुड बी गवर्न बाय द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज एज आई जस्ट टोल्ड यू. अब आता है चाइल्ड. कौन सा चाइल्ड है जो मेंटेनेंस के लिए लायबल है. A minor child, if unable to maintain itself, is entitled to claim maintenance. A child may be legitimate or illegitimate. ठीक है, वो legitimate हो या illegitimate हो, ये मतलब ये जो मुद्दा है ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा. दोनों ही जो चाइल्ड हैं वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिड हो या अनमैरिड हो. ठीक है, मैरिड और अनमैरिड भी, अगर मैरिड और अनमैरिड भी हैं तो भी दोनों ही सिचुएशन में मेंटेनेंस क्लेम करेंगे. अब 125 सबसेक्शन 1 का जो ए है वो माइनर चाइल्ड को कैसे डिफाइन करते हैं. माइनर चाइल्ड को हम डिफाइन करेंगे जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट आपने को पता होगा 1875 है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति 18 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स 18 साल की उम्र तक जो होगा वो माइनर होगा. तो मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से हम जो व्यक्ति माइनर है या नहीं ये डिसाइड करेंगे. प्रोवाइजो 125(1) कहता है प्रोवाइजो कहता है कि इफ द हस्बैंड ऑफ अ माइनर मैरिड फीमेल चाइल्ड is not possessed of sufficient means, the father of such female child will be required to make allowance for maintenance until she attains her majority. ठीक है, तो अगर आपने किसी माइनर लड़की की शादी कर दी और उसका हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस नहीं है कि वो उसकी टेक केयर कर सके, तो ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी उस बच्ची को मेंटेन करे जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाती है. ठीक है. अब
तो ये हो गया चाइल्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर अ मैन एंड women वर हेल्ड नॉट टू बी लीगली मैरिड। सवाल आया होगा आपके मन में भी। बट अ चाइल्ड वॉज born out of their company, it was held that the illegitimate child was entitled to maintenance। ठीक है, but if the paternity is not established, the child is not entitled to maintenance। ये डिसाइड किया था श्रीमती अहल्या बरिहा वर्सेस चेलिया प्रधान। अहिल्या बरिया वर्सेस चेहलिया प्रधान। अहिल्या, AHALYABARIHA, बरिहा वर्सेस CHHELLIE चेलिया, PEDHAN प्रधान। AIR ये है आपका 1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल 493, ब्रैकेट में लिखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा था। ठीक है, ऑफ कोर्स कि अगर दो लोग एक, क्योंकि इफ टू अडल्ट्स आर लिविंग टुगेदर एंड आउट ऑफ देयर कंपनी अ चाइल्ड born, that child will also entitled for maintenance from his or her father, right? But paternity अगर स्टैब्लिश नहीं होती है, मानिए कि वो बच्चा अगर उस व्यक्ति का नहीं है, तो फिर मेंटेनेंस का क्लेम वो बच्चा नहीं कर सकता है। Father or mother means parents, a father or mother unable to maintain himself or herself is entitled to claim maintenance from his or her son। ठीक है, 125 सब क्लॉज 125 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज आपका डी ये कहता है पेरेंट्स के लिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो क्लॉज में हिज लिखा हुआ है, वो हिज इंक्लूड होता है बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब नाउ आफ्टर दिस जजमेंट, दैट इज 1889 समथिंग, मतलब पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ बेटे की नहीं है, जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेटियों की भी है। तो therefore a married daughter is also liable to maintain her parents। The court pointed out that apart from any law, the Indian society cast a duty on the children to maintain the parents, and this social obligation equally applies to a daughter। ठीक है, तो एक बेटी पर भी इक्वली ये जो वो है प्रोविजन है वो अप्लाई करेगा। इस किस केस में कहा था? अरबात विजया मनोहर अरबात वर्सेस काशी राव के केस में, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट 1100। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लड़का और लड़की दोनों ही, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड भी हो, तो भी अपने पेरेंट्स की टेक केयर करेंगी, मेंटेनेंस उनको देंगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल मदर की बात हमने यहाँ की है, स्टेप मदर की बात नहीं की। जो अडॉप्टिव मदर है, अडॉप्टिव मदर हो सकती है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन स्टेप मदर का कोई भी प्रोविजन इसमें मेंशन नहीं है। अब बेसिस क्या होना चाहिए मेंटेनेंस क्लेम करने का? तो सेक्शन 25 कहता है कि बेसिस होना चाहिए इफ अ पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस, अगर एक व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मींस है वो निग्लेक्ट कर रहा है मेंटेन करने के लिए उन लोगों को जिनकी वो मेंटेन करना उसकी लायबिलिटी है, तो ठीक है। और दूसरा, और इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है टू मेंटेन एंड प्रोवाइड मेंटेनेंस, यानी कि अगर मेरे लिए किसी ने मेरे मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दी, अगर मैं ये कह रही हूँ नो आई डोंट हैव सफिशिएंट मींस टू मेंटेन योरसेल्फ, देन आई हैव टू प्रूव इट, बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन मी। ठीक है, अब आता है इसमें रिफ्यूज, निग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू मेंटेन। ठीक है, वही जो सेम बात है, इसमें कुछ भी अलग सा नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट केस है रंजीत कौर वर्सेस पवित्र सिंह। रंजीत कौर वर्सेस पवित्र सिंह 1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल 262 पंजाब एंड हरियाणा। इसमें कोर्ट ने कहा था मेंटेनेंस इज द स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द वाइफ। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, आप इसमें पर्सनल लॉज या रिलीजन या इन सारी चीज़ों को लेके नहीं आ सकते। एक विमेन का ये स्टैट्यूटरी राइट है कि वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस मीन्स appropriate food, clothing and lodging, however the word is not to be narrowly interpreted, the maintenance must include the minimum amount for education of a child। of course अगर एक बच्चे का आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो सिर्फ उसको खाना और घर देने का मतलब नहीं है, उस बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये कहा गया था मोंग शॉ बा केस में, मोंग शॉ बा, रंगून का केस था ये कोई। ठीक है,
अब देखिए, व्हेन वाइफ्स क्लेम ऑफ मेंटेनेंस में बी डिफीटेड, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें जो वाइफ का क्लेम है मेंटेनेंस का वो डिफीट हो जाएगा। मतलब अगर एक किस केसेस में डिफीट हो सकता है, वो है अगर आप एडल्ट्री में, इफ यू आर लिविंग इन एडल्ट्री, इन दैट केस if without sufficient reason she refuses to live with her husband, ठीक है। however, अगर एक हस्बैंड कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज करता है, उसके बाद अपनी वाइफ को फोर्स करता है कि वो सेकंड जो लेडी है उसके साथ रहे, या इफ ही हैज अ मिस्ट्रेस एंड ही वांट हर वाइफ टू लिव विद हिम, in that condition if she is denying to live with him, then that is a sufficient ground for claiming maintenance, ठीक है। when both the parties living separately by mutual consent, children have right to maintenance, ठीक है। तो if the parties are living separately by mutual, a divorced wife cannot however be characterized as a wife living separately by mutual consent. Living separately by mutual consent should be the outcome of the desire of both the parties, independently reasoned by both of them. It should not be the result of circumstances brought about by one of them. Further, even in such cases, जो बच्चे हैं उनको मेंटेनेंस मिलेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल कंसेंट से भी। डिवोर्स लेकर के आप अगर अलग रह रहे हैं तो क्लेमेंट मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है, कोर्ट ये भी कंसीडर करेगी कि क्या वो सच में ये कह रहा है, क्या ये सच में है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड की वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं, एक केस है यहाँ पे बहुत कई बार आता है, पंदुरंग केस है ये, पंदुरंग 1980 क्रिमिनल लॉ जर्नल 256 बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसमें इन्होंने कहा है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दैट क्लेम कैन नॉट बी डिफीटेड बाय प्लीडिंग दैट द फादर हैड फेल्ड टू फुलफिल हिज पेरेंटल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर माइनॉरिटी। तो ये तो मतलब अपने आप में ही हास्यास्पद स्टेटमेंट है कि ये जो पंदुरंग थे, इन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बचपन में मेरे प्रति पूरी नहीं की, इसलिए मैं उनको मेंटेनेंस नहीं दूंगा या उनको मेंटेन नहीं करूंगा। तो कोर्ट ने इसको टोटली डिनाई कर दिया था। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कोई क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस नहीं है। पहले 500 रुपीज का एक मैक्सिमम लिमिट थी, बट 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ था सीआरपीसी में, उसमें ये लिमिट को हटा दिया गया है। नाउ इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग दी ऑल द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द claimant and the person against whom the maintenance application has been filed। तो केस टू केस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप नहीं, अगर रेमेडीज आपके पास क्या क्या हो सकती हैं, अगर जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वो इन्फोर्समेंट में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दैट इज अंडर 125 सब क्लॉज 3, वारंट इशू हो जाएगा, सेंटेंस सच पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। पर देखिए एक बात समझिए, यहाँ जो ये सेंटेंस है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ ये है कि जो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है बिकॉज यू आर नॉट फुलफिलिंग इट, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर, इट्स अ काइंड ऑफ it's a kind of forcing someone to pay his dues or to fulfill his obligation। No warrant shall be issued unless the application is made to the court within a period of 1 year। अगर आप जैसे आपका आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, आपको मेंटेनेंस मिला, लेकिन आज से आपको मेंटेनेंस नहीं दिया उस व्यक्ति ने, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जब से वो फर्स्ट अमाउंट ड्यू हुआ है। द कोर्ट इज बाउंड टू इंक्वायर इनटू द रीजन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड जो है वो अटैच कर सकते हैं कोर्ट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। इट सीम्स दैट सैलरी भी अटैच की जा सकती है। ये केस था अहमद पाशा वर्सेस वजूदी निशा, वजूदी निशा, अहमद पाशा वर्सेस वजूदी निशा, 1983 क्रिमिनल लॉ जर्नल 479 आंध्र प्रदेश। इस केस पे कोर्ट ने कहा था कि सैलरी को भी हम अटैच कर सकते हैं अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे अपनी वाइफ को तो, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इम्प्रिजनमेंट है इम्पोज है 125 में, ये एक इन्फोर्समेंट का मोड है, ये एक पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा एक आप हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि अगर एक डिक्री ऑफ कंजुगल राइट फॉर कंजुगल राइट है मिली हुई है आपको किसी पार्टी को, तो क्या वो मेंटेनेंस के राइट को जो है वो फोरफीट कर देगा? नहीं। A decree of conjugal right does not necessarily put an end to the order of maintenance. It is on the discretion of the court। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपको कंजुगल राइट की जो डिक्री मिल रही है उसके बाद मेंटेनेंस की जो आपको ऑर्डर मिला है उसको हटाता है या नहीं।
अब 125 के बाद क्योंकि हमने किसको मिलना चाहिए, कौन क्लेम कर सकता है, अगर नहीं देता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हम इसके पहले ये पढ़ 127 पहले पढ़ लेते हैं, जो कि ये कहता है कि ऑल्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, कब ऑल्ट्रेशन हो सकता है, कब कैंसिलेशन हो सकता है। अगर हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात बोले, आपको इसको समझाने की कोशिश करें, तो ऑल्ट्रेशन तब हो सकता है जैसे डे टू डे लाइफ में जब टाइम बदलता है और चीज़ें और इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है और प्राइस लो चीज़ों के बढ़ रहे होते हैं। इस केस में कोर्ट आफ्टर कंसीडरिंग दी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द अदर पार्टी अगेंस्ट हुम दी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस हैज बीन पास्ड, उसकी कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मेंटेनेंस जो अमाउंट है उसको बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। अगर उस कम भी कर सकता है अगर वो जो व्यक्ति है जिसे मेंटेनेंस देना है वो रिटायर हो गया है या इन्फॉर्म हो गया हो या किसी वजह से अपनी जॉब करने में असमर्थ हो, तो उस कंडीशन में वो कम भी कर सकता है उस केस को, जो कॉस्ट है उसको। अच्छा, एन अवार्ड फॉर मेंटेनेंस मेड इन फेवर ऑफ वाइफ मे बी कैंसिल्ड। अच्छा, वाइफ के फेवर में जो है वो कैंसिल कब हो सकता है, आप बताइए। एक तो जो जो डिवोर्सी वाइफ है उसने या तो मैरिज कर ली हो, दूसरी व्हेन अ डिवोर्स वाइफ हैज रिसीव वेदर एक होल सम जो है वो उसने ले लिया हो कि मंथली मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक साथ दे दो, ठीक है। व्हेन द डिवोर्स वाइफ हैज वॉलंटरली सरेंडर हर राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर हर डिवोर्स, अगर आपने वॉलंटरी वेव ऑफ और सरेंडर अपने राइट को कर दिया, उस केस में भी आप जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपका जो क्लेम है वो कैंसिल हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 126। 126 कहता है जुरिस्डिक्शन, कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट में केस होगा, तो उस कोर्ट में केस होगा, एप्लीकेशन फाइल होगी जहाँ पे एट एनी प्लेस वेयर ही इज एट द टाइम, at the place he resides, at the place where applicant wife resides, at the place where he last resides with his wife or with the mother of the child in case the child is illegitimate। ठीक है, तो बेसिकली ये एक नॉर्मली कोशिश कोर्ट ये करती है कि जहाँ पे वाइफ रह रही हो या जहाँ पे पेरेंट्स रह रहे हो या जहाँ पे चाइल्ड रह रहा हो, उसी जो कोर्ट है उसकी जो जुरिस्डिक्शन में इसको हम लेके आए, क्योंकि वाइफ के लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि आप अगर ट्रांसफर पिटिशन फाइल करते हैं तो वो इस तरीके के डिवोर्स और मेंटेनेंस केसेस में भी वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्स नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वही होंगी। पनिशेबल ऑफेंस क्योंकि नहीं है, तो पर्सन प्रोसीडिंग नॉन, तो उसको एक अक्यूज नहीं होगा क्योंकि ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, तो इसमें एक आप अक्यूज नहीं कहेंगे पर्सन को, जस्ट इन्फोर्समेंट के लिए जो करना पड़ता है कोर्ट वो करेगा। कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं है फॉर द फाइलिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस, ये कोर्ट ने कहा था मिथु देवी के केस में। मिथु देवी का केस था 1975 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1694 पटियाला, तो देयर इज नो लिमिटेशन। और 125 की जो प्रोसीडिंग होगी वो समरी प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि इन स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था स्पीडी जो जस्टिस है या स्पीडी जो रेमेडी है वो प्रोवाइड करने के लिए जो लेजिस्लेशन है ये बना था, इसलिए समरी प्रोसीडिंग ऑर्डर एंड डज नॉट डिटरमाइन द राइट ऑफ पार्टीज, ठीक है। If there is an inconsistency between the decision of the criminal court and the civil court, the decision of the later prevails, although ordinary the decision of the civil court is irrelevant in a criminal proceeding, of course। A claim for arrears of maintenance abates on the death of the husband and cannot be thereafter enforced against his case। तो अगर जो एरियर क्लेम किया है अगर वाइफ ने तो वो अबेट हो जाता है, मतलब वहीं स्वतः खत्म हो जाएगा अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि लीगल एयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको आप कंटिन्यू करेंगे। कोर्ट ने कहा था इयाद अली वर्सेस लाल बीबी के केस में, ये इयाद अली वर्सेस लाल बीबी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एडिशन हुआ था 2001 में 125 में, वो था आपका इंटरिम मेंटेनेंस का क्लॉज। क्योंकि कभी कभी जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि उस ड्यूरेशन में अगर एक वाइफ अनेबल, पेरेंट्स या चिल्ड्रन खुद ही को सक्षम नहीं है और कोर्ट्स वगैरह के प्रोसीडिंग के फीस भी नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर वो जस्टिस प्रिवेल नहीं कर पाता। इसलिए आपने 125 में इंटरिम जो था सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड अंडर इट्स इनहेरेंट पावर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर जो है वो प्रोवाइड है। उन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस का दिया था किसको, सावित्री वर्सेस गोविंद सिंह को। सावित्री वर्सेस गोविंद सिंह AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 985। तो सावित्री और गोविंद सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस दिया था, उसके बाद कई सारे हाई कोर्ट्स ने भी ये प्रथा शुरू कर दी है,
ठीक है, कि पेंडेंसी के टाइम में भी आप इंटरिम मेंटेनेंस दे सकते हैं। और जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 60 डेज में उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत होती है ना, 60 डेज में आप उसको डिस्पोज ऑफ करिए, जो भी अगर उनको इंटरिम मेंटेनेंस देना है वो दीजिए, और जो प्रोसीडिंग्स वगैरह की जो लीगल लेजिटिमेट जो फीस वगैरह है वो भी अदर पार्टी ही बियर करती है। So everyone, this is all about maintenance of wife, children and parents. If you have any question, you can ask me, and in next session we'll start with trial before the courts. Thank you.